Bismillahirrahmanirrahim. I begin with the name of Almighty Allah, the most merciful, the most beneficent. I hope I'm audible to all of you and you all can listen to me. Assalamu alaikum, haq maujood, namaskar, pranam, sat sri akar, aloha, and welcome to class number 27 of Sindhi language learning course by Sindhi Language Authority, Government of Sindh, which is presented to you for your comprehension to Sindhi language as your second language. There are some of the participants who are opting to learn Sindhi as their mother tongue also, but they want to learn modalities about this language, especially they are educators of Sindhi language and they are not well versed with those basics of Sindhi, which should be taught to the basic learners and they learn how to teach it. तो उन सब का हम खैर मकदम करते हैं. This is 5:02 p.m. in Pakistan, 5:32 p.m. in India. This is 4:02 p.m. in United Arab Emirates, 3:02 p.m. in Hijaz al-Muqaddas, Kingdom of Saudi Arabia. This is 7:02 a.m. in London and rest of the parts of the United Kingdom. This is not 7:02, 7:02 in East Coast of United States of America. This is 12:02 in the noon in London and rest of the parts of the United Kingdom. This is 9:03 p.m. now, 9:03 p.m. in Japan. This is 11:03 p.m. in Australia and 1:03 a.m. in New Zealand for the next day. यानी वहाँ पर 6 फरवरी की तारीख हो चुकी है. So very good evening to those who are joining us. Majority is joining us from Pakistan. So from Pakistan and the rest of the parts of Southeast Asia and people who are joining us from Middle East, from most of the parts of Asia, Central Asia, Far East. Good evening to all of those. The friends who are joining us from United Kingdom and other parts of Europe, very early good afternoon or very late good morning to those. And the folks who are joining us from United States of America, a very early good morning to all of those. I hope it rained in almost all the cities of Sindh, especially, including Karachi, Hyderabad, and other cities. So I hope that you all are safe. So this is class number 27, and as we always start with the very first slide. So we are starting with very first slide, and let's see who will read the date for me. We will start from the first line. This is Sindhi Language Authority, Hyderabad. Of course, this is your alma mater, and it is going to teach you this course, Sindhi Language Authority, Hyderabad, Sindhi Boli Jawab Adar Hyderabad, Muqtadira Sindhi Zuban Hyderabad. Sindhi Language Learning Course, this is online Sindhi Boli Sikha course, and this is class number 27. And who will read this for me? Sumar Panji February 2024. Who will read this for me? Who is there to read it in Sindhi, not in Urdu or in English? Who will read this, the red line, the only red line on slide first, on the title slide for me in Sindhi? Which is the date and which is the day today? Muhammad Jalil Saab. Muhammad Jalil Saab. Yes, sir. Yes, sir. Muhammad Jalil Saab, sir, Muhammad Jalil Saab, तव्हां कीअं आहियो? Again, connectivity issue. I think you are responding, but I cannot listen to you. I'm so sorry, Mohammed Jalil Hello. साहब. जी जलील साहब अब फरमाइए. जी सर. सर मुंहिंजो हाल ठीकु आहे, ॾाढो सुठो हाल आहे. जबरदस्त. अल्लाह करे सदाई ॾाढो सुठो हाल हुजे तव्हांजो. जी. What is this date written, sir? What is this red? सर No. ये डेट है सर. तो I cannot listen, sir. Can you repeat it for me? पंज फरवरी 2000. This is not Somar. This is Sumar. This is Sumar. This is not Somar. ऊपर पेश है सर. यहाँ पर भी पेश है. वैसे भी आपको समझाया. ऊपर पेश है. Sumar. This is Sumar.
बाकी आपने सही पढ़ा। 2024 को आपने क्या पढ़ा? आई कुड नॉट लिसन इट, कैन यू प्लीज रिपीट इट? 2024, हाउ विल वी रीड 2024? ओके सर, आई कैन। 2024। नो सर, सॉरी सर। सुनिएगा कि कोई हमें जब सही बताएगा, वरना मैं आपको बता दूंगा। ये वो लफ्ज है जो मैं रोजाना रिपीट करता हूँ, तो इट शुड बी memorized by everyone. You should try to memorize it because this is something to be repeated on daily basis. आइलिन साहब, आई अप्रिशिएट कि आपने खुद ही आज हैंड रेज किया है। आइलिन साहब, यस सर। आइलिन साहब तव्हां कीअं आहियो? मां ठीकु आहियां सर, तव्हां कीअं आहियो? ज़बरदस्त, मां बि ठीकु आहियां। अलाह करे तव्हां ठीकु हुजो। छा तव्हां इहा रेड लाइन मुंहिंजे लाइ पढ़ी सघो था? जी। सूमर 5 फरवरी 2024। This is not February, this is February. Again, February. say it again, say it again. सूमर 5 फरवरी 2024। गुड। अच्छा, पंज भी सही है, लेकिन पंजी पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। 5 फरवरी 2024। सेट ओके। सेट 5 फरवरी 2024। 24। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब, मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम खैरियत? मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब। तव्हां जी तबियत से ठीक आहे? मां सट आहे सर, तव्हां ॿुधायो ठीक ठाक? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। पढ़ंदव तव्हां मुंहिंजे लाइ इहा जेका ॻाढ़े रंग में जेका लाइन लिखियल आहे, तव्हां पढ़ंदव मुंहिंजे लाइ? जी सर, सूमर 5 फरवरी 2024 ईस्वी। बे नहीं है, 2024। बोलिए 2024। 2024 24 2024 24 24 24। 24 ईस्वी। हाँ, 24 हो नहीं है, 24 24 24। जी, बोलिए सेठ। 2024 ईस्वी। सूमर 2024 ईस्वी। ईस्वी, थैंक यू इमरान ज़करिया साहब, एंड वेरी गुड। चले जनाब, बढ़ते हैं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी बिगिन विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, एंड वी again and again would like to we would beg to rather ask him for mercy and mercy for all, for the mankind. किसी भी तखसीस के बगैर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने फरमाया कि साईं सदाई, साईं कहते हैं मालिक को, मैं आखिर में मीम लगा, यानी मेरे मालिक, मेरे साईं। वर्ड ऑफ द डे में साईं भी करेंगे। साईं बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लफ्ज़ है और मुख्तलिफ मायनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत ही काबिल एहतराम लफ्ज़ है साईं। तो साईं यानी ए मेरे अल्लाह, ए मेरे मालिक। सदाई करी मथे सिंध सुकार, सदाई यानी हमेशा, करी यानी करो, मथे यानी ऊपर, सिंध सिंध के ऊपर, सुकार, सुकार कहते हैं कहत की का जो है वो जिद है, एंटोनियम है। डुकार इज कहत, सुकार इज खुशहाली, सरसब्जी। तो सिंध हमेशा, सिंध को हमेशा खुशहाल रहो, सिंध के ऊपर हमेशा सरसब्जी का बादल मंडलाता रहे। लेकिन दोस्त मिठा दिलदार, सेकंड लाइन में कहते हैं दोस्त मिठा दिलदार, ए मेरे दोस्त। मिठा मीन्स ए मेरे स्वीट हार्ट। मिठा, मिठा कहते हैं मीठे को, यानी जो आपको, आपके दिल को, आपके मन को मीठा लगे, उसको मीठा कहते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला को वो अपने प्यार का इजहार करते हुए कहते हैं कि ए मेरे दोस्त, ए मेरे स्वीट हार्ट, दोस्त मिठा दिलदार, ए मेरे दिलदार, आलम सब आबाद करी, आलम सब आबाद करी। वही आलम जो इसकी इस बैत की पहली शर्त में, आलम यानी तमाम कायनातें, तमाम दुनियाएं, सब तमाम आबाद करी, यानी जितनी भी कायनातें हैं, जितनी भी दुनियाएं हैं, वो तमाम की तमाम आबाद रखो। पहले मेरे सिंध पर सलामती का एहतमाम करो, और उसके बाद वो सलामती फैल जाए पूरी दुनिया में। तो हम आगाज करते हैं इसी दुआ के साथ। अवल वलीम आला आलम जो धनी। पहले 3 सत्रों में जो है वो, बल्कि 4 सत्रों में हमदो सना है, और इसी में मुनजात भी। अवल वलीम आला आलम जो धनी, कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे कदीम, वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम, सो सारा है सचो धनी चई हमद हकीम, करे पाण करीम जोड़ों जोड़ जहान जी। वो जोड़े से जोड़ बनाता है, तख्लीक करता है इस जहान की, कैसे करता है वो खुद ही जानता है। आज का लफ्ज़ 2 दिन पहले हमने, बल्कि 1 दिन पहले, 48 घंटे पहले जब हम सैटरडे को मिले थे, तो कौन सा लफ्ज़ किया था? मैं भूल जाता हूँ, आप मुझे हमेशा याद दिलाते रहते हैं। एनीबडी अदर देन आइलिन साहब, जलील साहब एंड इमरान ज़करिया साहब, एनीबडी एल्स who can remind me of word of the day?
What was the word of the day on Saturday? Who will remind me? Anybody else? Anybody सर else? रबिया हियर रबिया साहब, तव्हां कीअं आहियो? मां ठीकु आहियां तव्हां ॿुधायो मां भी ठीक आहियां। जी रबिया साहब। सर वर्ड ऑफ द डे था सवड़ सवाल क्या है? रजाई अच्छा, ओके कंफर्टर ओके, उसका प्लूरल क्या था? सवड़ियों सवड़ियों, यानी रजाइयाँ बहुत सारी रजाइयाँ। थैंक यू रबिया साहबा, बड़ी मेहरबानी तव्हांजी। तो आज का लफ्ज वर्ड ऑफ द डे, आज का लफ्ज क्या है? आज का लफ्ज है फूलों के साथ कांटे होते हैं ना, तो फूलों के साथ जो कांटे होते हैं, जो थॉर्न्स होते हैं, उनको सिंधी में क्या बोला जाता है? फूल, यानी फूल को आप एहतियात से तोड़ते हैं, क्योंकि उसकी जो डाली होती है, उस डाली में छोटे छोटे कांटे होते हैं। हर फूल के अलग अलग साइज के कांटे होते हैं, अलग अलग नौ के, अलग अलग तरीकों के कांटे होते हैं। लेकिन उस कांटे को सिंधी में क्या बोला जाता है? हिंदी में उसको शूल बोला जाता है, सिंधी में उसको बोला जाता है, कांटे से मिलता जुलता ही है, सिंधी में बोला जाता है कंडो। कंडो, कंडो, काफ नून, ये नून गुन्ना है, काफ नून गुन्ना जबर कन, सॉरी गुना नहीं है, ये नॉर्मल नून है। काफ नून जबर कन, डाल वा जबर डो, कन डो, कन डो। काफ नून जबर कन, डाल वा जबर डो, कन डो। सिंपल लफ्ज है और इसमें कोई भी ऐसा प्रोनाउंसिएशन नहीं है कि जो आपके लिए मुश्किल हो, जो इंडिजीनियस प्रोनाउंसिएशन में से या इंडिजीनियस लेटर्स में से जो सिंधी में हमने पढ़े हैं, जो कि सिंधी के इंडिजीनियस लेटर्स हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो आपके लिए मुश्किल पैदा करे। तो यह काफ नून डाल बा दो हिस्सों पर मुश्तमिल ये लफ्ज है, चार हरूफ पर मुश्तमिल ये लफ्ज है। पहला हिस्सा है कन, दूसरा हिस्सा है डो। कन काफ नून जबर कन, डाल बा जबर डो, कंडो। कंडो मीन्स कांटा, थॉर्न या कंडो, इसे प्रोनाउंस किया जाएगा। बॉटम में लिखा है कंडो, KNDO, कंडो। कंडो इज कांटा, थॉर्न, राइट। फूल और कांटे, गुल ए कंडा। फूल को सिंधी में गुल कहते हैं और जमा को गुल्ला कहते हैं। तो फूल और कांटे, गुल ए कंडा। जब मैं कंडा कह रहा हूं, इट मीन्स इसका प्लूरल होगा कंडा। वर्ड ऑफ द डे में इसका दूसरा हिस्सा कंडा। आपने पढ़ा कंडो, कंडो मीन्स वन कांटा। एक से ज्यादा कांटा हो, यानी ये एक कांटा है, ये इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें दो तीन है, तो ये कंडे हो जाएंगे, ये कंडा हो जाएगा, राइट। इसमें बहुत सारे आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे देख रहे हैं। हर फूल, हर पौधे का कांटा अलग साइज का, अलग तरीके का, अलग नमूने का होता है, तो उसकी जमा हो जाएगी कंडा। वही दो हिस्सों पर और चार हरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज है। काफन जबर कन, डाल अल जबर डा, कंडा मीन्स कांटे, थॉर्न्स कंडा। कंडा मीन्स थॉर्न्स, यानी बहुत सारे कांटे। बहुत सारे कांटों को, दो या दो से ज्यादा कांटों को कंडा कहा जाता है। तो वर्ड ऑफ द डे है कंडो, मीन्स कांटा, और एंड उसका प्लूरल है कंडा, मीन्स बहुत सारे कांटे, दो या दो से ज्यादा कांटे। I hope you understood. Who will tell me what was the sentence of the day on Saturday? Sentence of the day कौन सा था? Anybody else जो participate कर चुके हैं, उनके अलावा कोई नई आवाज सुनना चाहता हूँ। What was the sentence of the day on Saturday? आयशा खान साहबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आयशा खान, तव्हांजी तबीयत सेहत कीअं आहे? सर मां सुठी आहियां, तव्हां कीअं आहियो? मां बि सुठो आहियां। मुंहिंजी अम्मी चवंदी आहे मां सुठो आहियां, त पोइ सुठो हूंदुसि ज़रूर। जी आयशा खान साहबा, कल जी सर। परसों हमने क्या पढ़ा था? सेंटेंस ऑफ द डे। सर तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि ते कुझु गौर करियो। आप अपनी बात पे कुछ गौर करें। ओके, ये कब कहा जाता है? जब हम किसी को कहेंगे आप अपनी बात को रिकंसीडर करें। खासतौर पर जब कोई कहे कि मैंने ये फैसला किया है किसी के बारे में भी, तो आप कहेंगे, तो आप अपनी बात को पर नजरसानी करें या रिकंसिडर करें, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे सिंधी में? दोबारा कहिए। तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि ते कुछ गौर करियो। गौर करो, तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि ते कुछ गौर करो। थैंक यू आयशा खान, बहुत बहुत शुक्रिया। तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि ते थैंक कुछ यू गौर सर। करो, वेलकम। तो तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि ते कुछ गौर करियो, ये था हमारा सेंटेंस ऑफ द डे सैटरडे को। आज का सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ऑफ द डे, आज का जुमला, अज जो जुमला ये है, जब आप किसी को कोई प्रपोजल देते हैं, जब आप किसी को कोई ऑफर देते हैं, जब आप किसी के साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप की बात करते हैं, जब आप किसी के साथ कोई प्लान शेयर करते हैं, तो आप कहते हैं मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। यानी अगला आपसे सोचने के लिए मोहलत लेता है,
कि भाई मुझे सोचने के लिए मोहलत दो कि तुम्हारे साथ ये बिजनेस करने में मुझे फायदा होगा नुकसान होगा। तुम्हारे साथ अगर मैं ये घर किराए पे लूँ, आधे पे तुम रहो आधे पे मैं रहूँ, और चूंकि मैं महीने महीने के लिए बाहर चला जाता हूँ, तो मैं कम किराया दूँ, तुम ज़्यादा किराया दो। तुमने प्रपोजल तो दिया, साउंड्स फाइन, लेकिन मुझे कुछ मोहलत दो। तो वो एक फर्क, पहला फर्क क्या कहता है, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में कहेंगे मुझे, मुझे को सिंधी में कहते हैं मूंखे, मुझे मूंखे, आपके, तव्हां जे, आप यानी तव्हां, या अव्हां भी आ सकता है इसमें, तव्हां की जगह पर अव्हां भी आ सकता है। अव्हां के जे, जवाब, जवाब, या सिंधी में जवाब को वरंदी भी कहते हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा उलझाना नहीं चाहता। फिलहाल आप जवाब को जवाब पर ही इत्तफा करें। मैं आसान करके सेंटेंस आपको दे रहा हूँ। जवाब का ट्रांसलेशन है जो, इंतजार इंतजार ही रहेगा, रहन दो इज रहेगा, रहन दो इज रहेगा, रहेगा का तर्जुमा होगा रहन दो। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। मूंखे, मीम वा नून गुन्ना है ये, मीम वा नून गुन्ना पेश मुंह, यानी मुंह मीन्स माँ, आई, मी, खे मीन्स को, मुझे। ठीक है, मुझे, मूंखे हो जाएगा मुझे। ठीक है, मुंह खाली इज मी, आई, मीम वा नून गुन्ना पेश मुंह, खे जबर ये खे, तब हाँ, दिस इज तब हाँ, दिस इज नॉट तोहान। हम तकरीबन रोज ये लफ्ज पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम मुखातिब जिससे हो रहे हैं, तो उससे अदब से मुखातिब होने का यही सीगा होता है। या तो आप जिनसे मुखातिब हो वो जमा हो, बहुत सारे लोग हों, या वो आपके बड़े हों, या आपके काबिल एहतराम हो, आप वहां पर आपका इस्तेमाल करें तो होगा तब हाँ। ठीक है, त अलग है, व अलग है। ते पर जबर, वे पर जेर, ते जबर त, वाव जेर वे, हे अलिफ नून गुन्ना जबर हाँ, त व हाँ, तीन से हुए। एक हिस्सा हुआ त आधा पद, दूसरा हिस्सा हुआ व आधा पद, तीसरा हिस्सा हुआ हाँ, तब हाँ, या अब हाँ, अल जबर अ, वाव जेर वे, हे अलिफ नून गुन्ना जबर हाँ, मुखे तहाँ, जे, जीम जबर ये जे, जवाब, आखिरी हर्फ पर हरकत आती है, जबर जे जबर ज, वाव अलिफ जबर बा, बे जबर ब, जवाब, जो, जीम वा जबर जो, इंतजार, अल्फ अल्फ जेर ए, नून जेर ने, ते जेर ते जबर त, जुए अलिफ जबर जा, रे पेश रु, इंतजार, रहंदो, रे जबर र, हे जबर ह, बल्कि हे नून गुन्ना जबर हन, हे रे जबर र, हे नून जबर ह, दाल वा जबर दो, रहन दो, दिस इज नून गुन्ना अगेन, दिस इज नून गुन्ना, दिस इज नून गुन्ना। इस जुमले में जितने भी तीन नून आ रहे हैं वो तमाम के तमाम नून गुन्ना है। मूखे, मुझे, तव्हां जे, आपके, जवाब, जवाब, जो, का, इंतजार, इंतजार, रहन दो, रहेगा, मूखे तव्हां जे जवाब जो इंतजार रहन दो। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। उर्दू और सिंधी में एक मुमासरत यह है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आखिर में ही आता है, अंग्रेजी तरह दरमियान में नहीं आता, विल बी वेटिंग, ये दरमियान में है, तो अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। सिंधी और उर्दू में एक सहूलत यह है कि बहुत सारे अल्फाज जो है वो सेम टू सेम जाते हैं, और दूसरा ये कि अरेंजमेंट जो है ज़मीर से शुरू होगा या फाइल से शुरू होगा, फेल पर ख़त्म होगा, मफ़ऊल दरमियान में आएगा, काम की तफसीलात मॉडलिटीज दरमियान में आएंगी। मूंखे, तव्हां जे, जवाब जो, इंतजार रहंदो, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दिस इज सेंटेंस ऑफ द डे, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस सेंटेंस ऑफ द डे? अंडरस्टैंड? अब अगर इसी जुमले के दूसरे तरीके से बोलने वाले बहुत सारे लोग, एक टीम है, टीम ए, टीम बी, दोनों के दरमियान मुज़ाकरात हुए, कुछ शराइत तय हुई। अब उन्होंने कहा, टीम बी ने कहा हम सोच के बताएंगे, तो कहने वाले कह रहे हैं हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहले था मुझे आपके जवाब का इंतजार था, बोलने वाला वाहिद था, अब बोलने वाले जमा है, तो तब्दील क्या हो जाएगा, मुंह की जगह पर आ जाएगा सा, अल जबर अ, सीन अलिफ नून गुन्ना, जबर सा, असा, खे सेम रहेगा, आप उसमें देखें खे, इसमें खे, तवहां सेम रहेगा, तवहां, जे सेम रहेगा, जे, जवाब जो सेम रहेगा, इंतजार अंदो, इंतजार अंदो। सिर्फ the only thing will change in both sentences is move and asa, और मफहूम चेंज हो जाएगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा, असा के तो जवाब का इंतजार रहन दो, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, मुखे तो जवाब जो इंतजार रहन दो। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इंग्लिश में चेंज नहीं होगा, इंग्लिश में रहेगा, क्योंकि उसमें तवहां, तू, अवहां,
यानी तुम, आप, तू, सब जो है वो यू के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें अंग्रेजी में वी जरूर आएगा, जब हम असा कहेंगे तो उसमें वी जरूर आएगा, वो चेंज होगा। बाकी तमाम अरेंजमेंट जो है जुमले का वो सेम टू सेम ही रहेगा। तो विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, विल बी असा के तव्हां जवाब जो इंतजार रहंदो। बाकी जो है वो पूरे का पूरा जुमला जो है वो सेम रहेगा, असा के तव्हां जवाब जो इंतजार रहंदो। राइट? Any questions about word of the day and sentence of the day? कोई questions? Okay, तो who will tell me कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? Who will tell me आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? Guide me quickly ताकि मैं अगली स्लाइड्स पर बढ़ूं और फिर आगे वाले एजेंडा पर काम किया जाए। Who will tell me? Nobody will tell me. Okay, I'll tell you that. अस्सलाम वालेकुम सलाम। इमरान ज़कीर साहब बताइए, बताओ। सर, आज असेसमेंट टेस्ट है हमारा, वीकली असेसमेंट टेस्ट होगा 5:40 पर। ओके सर, उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा सर हम आठवें चार्ट जो है, ऊ के चार्ट की जो है वो जो हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसको पढ़ेंगे आज। क्या करेंगे? उसका पहला मरहला है, दूसरा मरहला है, तीसरा मरहला है? कौन सा मरहला तय करेंगे उस चार्ट का? उसका पहला मरला होगा सर, पहला मरला होगा। पहला मरहला तय करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू इमरान ज़कीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हु विल टेल मी व्हाट डिड वी डू ऑन सैटरडे? सैटरडे क्लास में हमने क्या किया था? अपार्ट फ्रॉम वर्ड ऑफ द डे एंड सेंटेंस ऑफ द डे व्हिच यू टोल्ड मी दैट व्हिच वाज द वर्ड ऑफ द डे एंड सेंटेंस ऑफ द डे, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वाज द ओवरऑल स्केच ऑफ सैटरडेज क्लास? हमने क्या किया था सैटरडे की क्लास में? एनीबॉडी एल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसके अलावा कोई मुझे बताएगा? जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनके अलावा कोई बताएगा मुझे? Is there anybody who can tell me, who can raise his or her hand and help me telling कि हमने क्या किया था? शादी सराज साहब। हाँ सर। वालेकुम सलाम, तव्हां कीअं आहियो? मां ठीक आहियां सर, तव्हां ॿुधायो? मां ठीक आहियां। क्या कहेंगे? मां ठीक आहियां। मां ठीक मां आहियां। ठीक आहियां। मां भी ठीक आहियां। शादी सराज साहब ॿुधायो, what did we do on Saturday? संसद ते छा कयो हुयोसीं? सर हमने वर्ड ऑफ द डे किया था और सेंटेंस ऑफ द डे किया था। उसके बाद हमने जो फ्राइडे क्लास वर्क जो असाइनमेंट थी उसको डिस्कस किया था, जो हमने मार्च की थी उसका रिजल्ट। और उसके अलावा जो है हमने लोगों पर बात की थी। किस चीज का लोगो था वो? और सर ये सिंधी बोली की आगाही का जो मुहिम था, मुहिम के बारे में। ओके। और इसके अलावा हमने रिश्तन जनाला किए थे। ओके। उसकी फोर्थ, हाँ जी, फोर्थ स्लाइड थी हमारी। ओके, उसका फोर्थ हमने पार्ट किया था, फोर्थ पार्ट किया था फोर्थ उसका, पार्ट किया था। चौथा हिस्सों का उसका। थैंक यू शादी असरार साहब फॉर एनलाइटनिंग रिगार्डिंग द सैटरडेज क्लास। शादी असरार साहब ॿुधायो तो ओवरऑल असां छा कयोसीं? व्हेनेवर आई आस्क यू कि क्या किया था, तो उसमें ओवरऑल चीजें आएंगी कि फला चीजें, मोटी चीजें पॉइंट की सूरत में आएंगी कि ये हमने किया था। तो दिस इज द स्टाइल ऑफ शेयरिंग के हमने क्लास में किस तरह से चीजें की थी। फिर जब मॉडलिटीज पूछी जाए, तफसीलात पूछी जाए, तो आप डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में जैसे कि बताया गया कि हम नेक्स्ट चार्ट करेंगे, लेकिन मैं रिमाइंड करवाता चलूँ पोस्टर असाइनमेंट के हवाले से कि पोस्टर असाइनमेंट आपको दिया गया है। हो सकता है कि कुछ हमारे दोस्त हमारे इस लास्ट क्लास में शामिल ना हुए हों, उसके बावजूद हमने सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी में इसकी तफसीलात जो है, इसके बनाने का तरीका ग्रुप पर शेयर कर लिया, वो यकीनी तौर पर आप सब ने देख लिया होगा। तो ये जो मैं सिर्फ इतना रिमाइंड करवाता चलूँ, ज़्यादा तफसीलात में जाए बगैर, कि इसकी लास्ट डेट जो है वो नेक्स्ट संडे है। कल संडे था, नेक्स्ट संडे 12 फरवरी रात के 12 बजे से पहले तक आप उसका स्नैपशॉट हमें भेज सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि दिस इज नॉट ए डिजिटल पोस्टर। ये डिजिटल पोस्टर नहीं है, मैनुअल पोस्टर है। डिजिटल पोस्टर तो अच्छे से अच्छा आप बना भी सकते हैं और बनवा भी सकते हैं, तो उसमें आपकी स्किल नजर नहीं आएगी। यू हैव टू पुट इन योर स्किल, राइट? इट शुड बी 100% मैनुअल। कहीं पर आपको अगर कोई फिगर्स वगैरह की कोई ज़रूरत है, तो आप वहाँ से अगर प्रिंट आउट लेते हैं उसका, और उसका जो है वो पेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन भी 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 95% शुड बी योर ओन मैनुअल वर्क, हैंडमेड वर्क, क्योंकि पोस्टर का यही कमाल होता है कि व्हेन यू डिज़ाइन, आपकी स्किल्स नज़र आनी चाहिए। क्योंकि कुछ हमें जो
सवालात मौसूल हुए और कुछ लोगों ने जल्दबाजी में पोस्टर डिजाइन करके भेज भी दिया। तो हमने कहा कि दिस इज नॉट अ डिजिटल पोस्टर, दिस इज अ मैनुअल पोस्टर, सो बिहेव विद द पोस्टर लाइक एन आर्टिस्ट, not like a digital artist, like an artist, like an street artist. You have to behave with your poster like this. तो उसके बाद क्या निकलता है, क्योंकि कभी कभार आप कैनवस पर, किरदाश पर जब आप पेंट करने लगते हैं तो आपको खुद को पता नहीं होता कि इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, और वो कभी कभार आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चीज बन जाती है, ज्यादा अच्छी बन जाती है, कभी कभार एक्सपेक्टेशन से कम अच्छी बनती है। सो मेक इट ऑन रफ, उसके बाद आप फेयर कीजिए इसको बड़ी चार्ट शीट पर, जो फुल साइज चार्ट शीट होती है। आज के इस क्लास में 5:40 पर जब ब्रेक होगा, उससे पहले अगर ब्रेक हो जाता है तो वो किसी फनी खराबी की वजह से होगा, तो यू मस्ट रिकनेक्ट बिकॉज वी विल स्टार्ट आवर टेस्ट एट 5:40 PM। 5:40 PM पर आपको टेस्ट भेजा जाएगा हस्बे मामूल। आज के टेस्ट में ज्यादातर सवाल ऐसे हैं कि बेहतर ये होगा कि आप किसी शीट पर उसका जवाब दें, ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे जुमले हैं जो कि सिंधी में आपने तहरीर करने हैं। तो आपके पास बहुत सौ के पास, मोस्टली के पास सिंधी फॉन्ट आपके फोन में नहीं है, तो बेहतर ये होगा कि आप एक पेपर मुख्तस कर लें, उस पर अपना नाम और अपने TR नंबर और अपने शहर का नाम टॉप पर लिख लें। उसके बाद 1 2 3 4 से लेकर 7 तक आप मार्क कर लें। कुल 7 सवाल पूछे गए। सवाल को समझिएगा कि कहाँ पर सिर्फ लफ्ज पूछ रहा है और कहाँ पर उसकी ट्रांसलेशन भी पूछ रहा है। अगर ट्रांसलेशन पूछ रहा है, आपने लफ्ज की ट्रांसलेशन नहीं लिखी, तो आपका आधा जवाब गलत हो जाएगा। तो जल्दबाजी से काम मत लीजिए, टाइम को मैनेज करना सीखिए। All about the test and commission examination is managing how to manage time. जब आप टाइम मैनेज करना जान गए और विदाउट लूजिंग योर टेम्परामेंट, अगर आप सही जवाब, अबड़ दबड़ में नहीं, हैसल में नहीं, आप सही जवाब सही वक्त पर देना जान गए, तो मीन्स आपसे कोई नहीं मिल सकता। बिकॉज कभी कभार, बल्कि बहुत सारी बार आपको बहुत कुछ आ रहा होता है, लेकिन टाइम मैनेज ना करने की वजह से वो चीज़ें आप जॉट डाउन नहीं कर पाते और फिर आपसे वो सबकत ले जाते हैं जो कि आपसे वैसे इंटेलिजेंस में, IQ में, EQ में कम होते हैं। राइट, तो हम बढ़ते हैं आगे। सिंधी आयोटाजी पट्टी, जिसको कक बोला जाता है, उसमें हमारा अगला पड़ाव। पड़ाव को सिंधी में क्या बोलते हैं, कौन बताएगा मुझे? पड़ाव को सिंधी में क्या बोलते हैं? अगला पड़ाव। मैंने इसी वजह से ही वर्ड करवाया था। वालेकुम सलाम सर, मोहम्मद हमजा साहब, तव्हां कीअं आहियो? सर मां ठीकु आहियां, तव्हां ॿुधायो तव्हां कीअं आहियो? मां बि अल्लाह साईं जी महिरबानी सां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां ऐं तव्हांजे लाइ दुआगू आहियां। जी मोहम्मद हमजा शुक्रिया साहब, वेलकम। जी मोहम्मद हमजा साहब। सर थाक कहते हैं। थाक कहते हैं, जबरदस्त। थैंक यू मोहम्मद हमजा साहब फॉर गाइडिंग। कि अगला पड़ाव, ईंदड़ असांजो जेको थाक आहे उहो कहिड़ो आहे? ईंदड़ थाक आहे थाक नंबर 8। जब बहुत सारे थाक हों तो क्या बोला जाएगा? अगर प्लूरल हो, कौन बताएगा मुझे? अगर थाक को प्लूरल किया जाए तो क्या होगा? रबिया है। रबिया जी, रबिया साहबा। थाक। थाक, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कितने थाक हैं, केतिरा थाक आहिनि असांजे हिन कक जा, सिंधी आयोटाजी पट्टी जा केतिरा थाक आहिनि? हाउ मेनी थाक्स आर देयर? कितने हॉल्ट्स हैं? सर मोहम्मद हमजा। जी हमजा साहब। सर 20 थाक आया। 20 थाक आहिनि। आहिनि। 20 थाक आहिनि। गुड, वेरी गुड हमजा साहब, वेरी गुड। रबिया साहब, वेरी गुड। तो हम पहला थाक जो है, तो पहला पड़ाव क्रॉस कर चुके हैं, सिंधी अलुबेल चार्ट। फिर उसके बाद अदखरी जदवल, यानी आधे हर्फ पर मुश्तमिल जदवल। उसके बाद फिर जबर के चार्ट हम कर चुके, जेर का की जदवल कर चुके, पेश का चार्ट कर चुके, मद या अलिफ जी जदवल कर चुके, ओ जो चार्ट कर चुके। यानी ये 7 हम चार्ट्स कर चुके हैं, उनमें से 5 की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। और ये अब 8वें पड़ाव पर पहुंचे हैं। 8 थाकते पहुता आयूं। कुल 20 थाक आहिनि। सिंधी आयोटाजी पट्टी कक जा कुल 20 थाक आहिनि। कुल 20 थाक आहिनि। असां 8 थाक ते पहुता आहियूं। राइट, वी आर ऑन थाक नंबर, ऑन हॉल्ट नंबर, ऑन मंजिल नंबर, ऑन पड़ाव नंबर 8, दैट इज ऊ। अलिफ वाव पेश ऊ, अलिफ वाव पेश ऊ। ठीक है, जबर के बाद जेर आती है, लेकिन अलिफ वाव के साथ जेर कहीं नहीं आ सकती, क्योंकि ई वो ये प्रोनाउंसिएशन बन ही नहीं सकता, इससे कोई लफ्ज नहीं बनता। तो जाहिर है कि हम डायरेक्ट ऊ पर आ गए, यानी जबर के बाद वाव पेश पर आ गए। तो ये है ऊ की जदवल, ऊ जो चार्ट। जिसके बाद हम 9वां और 10वां जो पड़ाव क्रॉस करेंगे वो है ए जो चार्ट, ए जो चार्ट। ए और ए में क्या फर्क है? ये बहुत सारे अल्फाज हैं, जब मश्क करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए कहाँ पर इस्तेमाल होता है और ए कहाँ पर इस्तेमाल। फिर ई जो चार्ट, अन जो चार्ट, इन जो चार्ट, उन जो चार्ट, आ जो चार्ट,
ओ जो चार्ट, ऊ जो चार्ट, ए जो चार्ट, ऐ जो चार्ट, ए जो चार्ट, ऐ जो चार्ट और ई जो चार्ट या ई जी जदवल। तो दीज आर फोर्थ कमिंग थाक जेके असांखे उकरणा आहिनि, जेके असांखे क्रॉस करणा आहिनि, जेके असांखे सिखणा आहिनि, राइट। बट नाउ वी हैव टू रीड अबाउट दिस ऊ जी जदवल, ऊ जी पट्टी, ऊ जो चार्ट, राइट। तो ऊ जो चार्ट में हु कैन गेस के शुरू वाले अल्फाज कैसे हो सकते, शुरू वाले हरूफ कैसे? जी जनाब, हु कैन गेस के शुरू वाले जो इस सिलसिले में हरूफ हैं सिंधी अल्फाबेट के, ऊ के चार्ट में वो किस तरह से हो सकते हैं? कैन एनीबडी गाइड मी, कैन एनीबडी गेस के, यानी मैं चार्ट पहले आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन ज़ाहिर है कि इतना तो आइडिया होगा कि अलिफ बे 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 ते से, तो किस तरह से, तो शुरू वाले हरूफ में इसकी मश्क कैसे हो सकती है? अलिफ वा पेश ऊ की मश्क किस तरह से होगी शुरू वाले हरूफ में? कैन एनीबडी गाइड मी, कैन एनीबडी गेस? बेशक गलत हो लेकिन कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेट। ऊ की जद्दुल किस तरह से होगी? रबिया है रबिया साहबा, गो सर। अहेड। अलिफ वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, बा वाव पेश बू, बू, भे वाव पेश भू, ते वाव पेश तू। तू, शाबाश। अच्छा, इसको बा ना पढ़े, इसको बे पढ़े, इसको बा ना पढ़े, इसको बे पढ़े, राइट। बा नहीं है, बा हम अरबी में प्रोनाउंस करते हैं, ये अलिफ बे बे भे ते, राइट। दिस इज बे, दिस इज बे, बे वा पेश बू, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, आपने प्रोनाउंस बिल्कुल सही किया, लेकिन सिर्फ जस्ट छोटी सी जो करेक्शन है वो है बा को बे पढ़े और बा को बे पढ़े, राइट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड, वेलकम। तो जनाब, दिस इज चार्ट ऑफ ऊ जी पट्टी या जदवल, ऊ जो चार्ट, पड़ाव नंबर 8, राइट। इसका पहला मरला, 3 मरले होते हैं, हम इसको पहले रिवाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, आप पढ़ते हैं। पहले मैं पढ़ा करता था किसी जमाने, वंस अपॉन अ टाइम, लॉन्ग लॉन्ग अगो, बट नाउ यू आर एबल टू रीड इट। आप मुझे बताते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, चाहे वो आ का चार्ट हो, मद का चार्ट हो, चाहे वो अलिफ वाव जबर ओ का चार्ट हो, मद से लेकर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, और ये पट्टी भी, और जो कल उसका दूसरी मंजिल होगी वो भी आप ही पढ़ेंगे। आयशा तारिक साहब, यू वांट टू ऐड एनीथिंग और आस्क एनीथिंग? No, I want to volunteer for reading. Oh, I appreciate it. Okay, just start from Alif Wa Pesh से start करें. Alif वाव पेश ऊ, Good, बे वाव पेश बू, good. बे वाव पेश बू, Boo, भे boo. बू, भे वाव पेश भू, Good, ते वाव पेश तू, good, थे वाव पेश थू, good, टे वाव पेश टू, good. Thank you very much. थे Thank you, Aisha Sahaba. Thank you, Aisha Tariq Sahaba. Thank you very much. Who will come next? Teva Pesh 2 से who will move forward? Who will go ahead? Who will go ahead from Teva Pesh 2? आप आइए, वरना मैं आपसे गुजारिश करूं, शादी इसरात साहब, टेवा पेश 2 जी से। सर। जी, टे वाव पेश टू, गुड, ठे वाव पेश टू, गुड, से वाव पेश टू, गुड, पे वाव पेश पू, गुड, जीम वाव पेश जू, गुड। जे वाव पेश जू, ये वा पेश जू, जे वाव पेश जू, try to say it, ये वा पेश जे जू, ये वा पेश जे जू, वाव पेश जू, जे वाव पेश जू, झे वा पेश झे जू। वाव Stop पेश there. Stop there. Thank you very much. Thank you very much, Shadi Sraj Sahaba. Who will volunteer to read from Jeva Pesh Jhu? We have 4 minutes, then we will be moving to the test. Jeva Pesh Jhu. Who will read? Karim Saab. Aisha Khan, wait there. Karim Saab, can you read? Aisha Khan, next is you. Karim Saab. सर वालेकुम सलाम करीम जी। साहब, की आयो ता ठीक आयो? अदा करा मसन ठीक ठाक जी, झेवा पेश झू कहाँ ते पढ़ो? जे पे जो ये वहाँ पे यूं ना झू यूं के ना, वापस ही यूं। यहाँ पर आइए। ये यहाँ- वहाँ पे यूं नहीं ये वहाँ नहीं, पे ये से पहले यूं, आराम से, तअम्मुल से, सब्र से, ये ये पढ़िए। वहाँ पे झू, गुड। ये वहाँ पे झू, झेवा पेश झू के बाद ये क्या वहाँ है? पे यूं, ये वहाँ पे यूं, ये वहाँ पेश यूं, ओके, के वहाँ पे छू, गुड, के वहाँ पे छू, गुड,
है वापस हु, Good. है वापस हु, Thank you very much. Aisha Khan. Thank you very much. Aisha Khan साहबा जी. फिर वापस हो, Good. दाल वापस दू, Good. दाल वापस दू, Good. दाल वापस दू, Dal वापस दाल do. वापस Dal दू, वापस do. Try it ढे straight. वापस धू, दाल वापस दू, कुछ बेहतर है लेकिन उसको एक्यूरेट करने की कोशिश करें. ओके, मूव फॉरवर्ड फ्रॉम डालबा. जी, व्हाट इज दिस? जी, दाल वापस दू, नहीं, यहाँ पर आइए ऊपर. लास्ट अच्छा। वर्ड इन द थर्ड लाइन. लास्ट वर्ड इन द थर्ड लाइन. लास्ट लेटर इन द थर्ड लाइन. दिस जी, वन. ढे वापस धू, नहीं, ढू से पहले ऊपर. लास्ट लेटर इन द थर्ड लाइन. दिस वन आई एम मार्किंग. लास्ट लेटर इन द थर्ड लाइन. व्हाट इज ढे दिस? वापस धू, गुड. गुड. ढे आइए. वापस धू, हम्म. ढे वापस धू, गुड. जाल वापस जू, गुड. रे वापस रू, गुड. रे वापस रू, गुड. जे वापस जू, थैंक यू. थैंक यू सीन आयशा खान. वापस थैंक यू आयशा खान सू, साहबा. थैंक शीन यू. वापस शू, Thank you, Aisha Khan Sahaba. Who will read from Seenwa Pesu? आगे कौन पढ़ेगा? मोहम्मद जलील साहब. We are सीन जी. यस सर सीन वाव पेश सू Good. शीन वाव पेश शू स्वाद वाव पेश जू ज़्वाद वाव पेश जू तोय वाव पेश तू. Okay. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much. Afro Sahaba, acho. Afro Sahaba. Afro Sahaba. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. How are you, sir? मां ठीक है. ता ठीक है हो? Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम अफरो साहिबा. ता ताईं मुंहिंजो आवाज़ पहुचे पियो? जी सर अॼु जी, नेटवर्क जो ॾाढो इशू पियो थिए. हा, बसि तव्हां कोशिशि कयूं था जेके ॿिए खे सम्झी सघूं. तव्हां ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? जी अल्लाह जो शुक्र आहे सर. तव्हां ठीकु आहियो? मां ठीकु आहियां. अलाह जो शुक्र आहे. तव्हां तुए वक़्तु पेशतू खां थोरो जल्दी जल्दी पढ़ो छाकाणि त असांजे टेस्ट जो टाइम थिए जी पियो. जी, तुए तोय वाह पेशा तू गुड. ज़ोय वाह पेशा ज़ू गुड. एंड वाह पेशा ऊ गुड. गैन वाह पेशा गू गुड. फे वाह पेशा फू गुड. फे वाह पेशा फू काफ वाह पेशा कू गुड. काफ वाह पेशा कू Thank you, खे Afro वाह साहब. पेशा कू. Thank you, Afro साहब. वॾी Okay. महिरबानी. Thank you very Thank much. you. We will continue from खेवा पेशकू after test, right? टेस्ट के बाद हम कंटिन्यू करेंगे खेवा पेशकू से. So this is the test time and we'll be ending this class. We will be having a break and then within seconds आपके पास ये टेस्ट आ जाएगा and we will reconnect at 5:54 p.m. You have time till 5:53 p.m. Thank you very much. See you after the test. Ji Janab, welcome back after the test. How was the test? What is your feedback and reflection about the test? जो मैं पूछता हूँ कि आपके लिए मुश्किल थी आसान थी. Mohammad Hamza Saab, how was the test? Your feedback or reflections about the test? Yes sir, it was good. Good मतलब? मजा आया कर. अच्छा, मजा आया मतलब आसान थी या मुश्किल थी? सर मॉडरेट था. Okay. लेकिन सही था बस. Okay. बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं. Okay, thank you. Maqsood Ali Saab, your reflections on the test? Maqsood Ali Saab. सर टेस्ट तमाम सुठी हुई सर. मॉडरेट. सुठी मतलब ॾुखी हुई आसान है एतिरो ॿुधायो. डिफिकल्ट और इजी? न सर मॉडरेट. मॉडरेट है. मॉडरेट. ना आसान नहीं ना मुश्किल है. आयशा तारिक साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. The test was good. अच्छी बात यह है कि पैटर्न से हटकर सवाल होते हैं तो हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है ताकि हम उसके बारे में ज्यादा सोच सकें. एक सवाल था जो कि कुछ मुझे मुश्किल दरपेश आई क्योंकि क्लैरिटी नहीं इतनी बिल्डअप हो सकी. जैसे कि ये सवाल था कि पेश जी जदवल जी मश्क
हम फर्स्ट स्टेज पे करते हैं वो सिर्फ वर्बल होती है ना, को रीड थ्रू करते हैं, जिसमें हम हर वाहिद अखर के ऊपर एक पेश लगा देते हैं, या जो भी एराब की मशक कर रहे होते हैं हम वो। तो इसमें था कि पहले 5 लेटर, फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ सिंधी अल्फाबेट, तो उसके ऊपर पेश लगाकर लिखना था, या उससे बनने वाले जब हम मश्क का लफ्ज यूज करते हैं, क्योंकि मश्क प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हम उससे बनने वाले अल्फाज की मश्क कर रहे होते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हुई कि या पहले तमाम हरूफ तहज्जी के पहले 5 हरूफ के ऊपर पेश लगाकर दिखाना था, या उनसे बनने वाले अल्फाज को लिखना था। आपका सवाल पूरा थोड़ा सा हुआ? कंफ्यूजिंग था। सवाल पूरा हुआ आपका? ये सर। इस जुमले में कहीं भी लफ्ज लफ्ज था, वर्ड या बोल था, या इंग्लिश में कहीं वर्ड लफ्ज था? आपने देखा कि वर्ड का कहीं जिक्र हो? नो सर, मश्क वर्ड में का लफ्ज था। पहले पहले 3 हरूफ उसमें लिखे, तो पहले 3 हरूफ। मश्क का मतलब यह है कि प्रैक्टिस। मश्क तो उसको भी कहते हैं, कसरत को मश्क कहते हैं, जो एक्सरसाइज आप करते हैं सुबह में, उसको भी मश्क कहते हैं। तो मश्क तो किसी भी चीज की हो सकती है। मश्क तो ये भी है, जो पहला मरहला हम कर रहे हैं, अलिफ अलिफ वाव ज़बर ऊ, बे वाव ज़बर बू, ये भी मश्क है। लेकिन हम उसको मश्क कहते हैं कि जो अल्फाज हम बनाते हैं। लेकिन लफ्ज का लफ्ज जब नहीं था, तो पहले वाले 3 हरूफ का मतलब पहले वाले 5 हरूफ लिखे कैसे जाएंगे विद पेश, यही था, यही पूछना था। और पहले वाले 5 इसलिए कहे कि उसमें सिवाय एक भे के बाकी तमाम हरूफ उर्दू में भी हैं, तो उसमें लिखना कोई मुश्किल नहीं है। भे भी उर्दू में है, लेकिन उसकी शक्ल तब्दील है, सिंधी में कुछ और है, उर्दू में कुछ और है। तो इसलिए पहले वाले, जैसे अभी गैस करने के लिए कहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया आपके वॉलंटियर करने से पहले, तो मैंने कहा कि पहले किस तरह से होंगे। मेरे ख्याल में रबिया साहब ने जवाब दिया था कि गैस कीजिए, हम पहली स्लाइड पर थे, कि गैस कीजिए कि पहले वाले हरूफ में ऊ की जदवल कैसे हो सकती है। तो उन्होंने गैस किया था शुरू वाले हरूफ का। तो दिस इज लाइक दैट। और दूसरा ये कि पैटर्न की जो आपने बात की, इज देयर एनी फिक्स पैटर्न ऑफ द असेसमेंट टेस्ट? इज देयर एनी प्रेस्क्राइब्ड और अनाउंस्ड फिक्स पैटर्न के इसी पर ही टेस्ट आएगा? कोई ऐसा फिक्स पैटर्न अनाउंस है क्या कि हम मिनोन इस पर ही टेस्ट निकालेंगे, या आपने खुद एक मतलब मफरूजा बना लिया या अज्यूम कर लिया कि ये इसका पैटर्न है और इससे हट के नहीं आएगा टेस्ट? क्योंकि आपने कहा कि पैटर्न से हटकर था, तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर मी कि इज देयर रियली अ पैटर्न फॉर द टेस्ट? मैंने तो नहीं रखा कहीं पैटर्न। नहीं सर, आईसाइट के पैटर्न नहीं है, तो ये अच्छी बात है। हाँ, आईसाइट पैटर्न के तो नहीं। पैटर्न से हाँ, कोई पैटर्न तो नहीं। एक फिक्स पैटर्न नहीं है, तो डिफरेंट सवाल आता है, वो चैलेंजिंग होता है, तो ये अच्छी बात है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है हमारी, तो जी आई हाँ, अप्रिशिएट दिस पॉइंट। थैंक यू। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था इस ओके, सवाल में। ओके, आपने फीडबैक पूछा तो इसलिए शेयर किया। ओके। नहीं, वी विल ट्राई टू मेक द क्वेश्चंस मोर इजियर। हमारी कोशिश यही होती है कि क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंसिव हों, पड़ोस वाले से पूछने की जरूरत ना पड़े कि इस सवाल का मकसद क्या है, वो खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। लेकिन अगर उसमें कम्युनिकेशन में कोई कमी रह गई है, तो विल ट्राई टू फिक्स इट इन फ्यूचर, कि वो सवाल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, और उसमें आपको शायद आप मश्क के लफ्ज की वजह से कंफ्यूज हो गए, तो आइंदा से वो मश्क का लफ्ज ना हो, और ये हो कि पहले वाले 5 हरूफ जो हैं वो उन पर पेस्ट लिख के देकर दिखाएं, तो शायद हो सकता है कि आपके लिए आसान होता। तो विल ट्राई टू फिक्स इट। थैंक यू। अफरोज साहिबा, तव्हांजो फीडबैक टेस्ट जे हवाले सां। अस्सलाम मसूद, वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अफरोज साहिबा, कोई फीडबैक? कीअं हुई? ॾुखी जी हुई, सर। सवली हुई, सर आसान हुई या सुठो मुश्किल हुई? टेस्ट सुठो। जी जी सवली। सवली जी सर, हुई। आसान हुई, सुठी भी हुई। जी ओके, ओके, थैंक यू। फैजान अहमद जी। साहब, एनी फीडबैक? फैजान अहमद साहब हमारे बहुत ही कम गो जो है वो फेलो हैं, जो कम कम बात करते हैं। फैजान अहमद साहब, फैजान अहमद साहब। नो सर। जी, क्या था फैजान अहमद साहब? देयर इज अ कनेक्टिविटी इशू। आज ओवरऑल कोई कनेक्टिविटी इशू है, बल्कि बारिश के बाद शायद कुछ ऐसा है सिलसिला। तो आई वांटेड टू लिसन फ्रॉम फैजान अहमद साहब। शादी इसरात साहब, यू रेज योर हैंड। यस सर। जी, टेस्ट के बारे में कह रही थी। जी, जी। टेस्ट हमेशा की तरह आसानी था सर, जैसे हमेशा होता है। हमेशा की तरह आसान था? अच्छा, जी आसानी था। ओके। और बस ये कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो शायद मुझे नहीं लगता टेस्ट मेरा इतना अच्छा होगा।
जी, तो आप एक तरफ कह रही हैं आसान था, तो आसान था तो आपने आसानी से हल कर लिया होगा। इंशाल्लाह। चलें, गेट वेल सून, गेट वेल सून। थैंक यू। मोहम्मद जलील साहब, मोहम्मद जलील साहब। सर टेस्ट, यस सर। सर टेस्ट के हवाले से फीडबैक ये था कि ये दोनों चीज़ों को कवर कर रहा था, हमारा जो कोर्स का जो कंटेंट है उसको भी, और जो आपकी रहनुमाई जो होती है साथ साथ उसका भी। जैसे ये बीच में था कि कौन सी स्किल किस से इम्प्रूव होगी, ये आपके जो अल्फाज पे हम गौर करें तो वो वहां से जवाब बनता था। तो कंटेंट्स और आपकी जो गाइडेंस है वो दोनों को जोड़ के बना है, जो कि एक अच्छा मिक्स था और जिसमें सोच के जवाब देना था। बिल्कुल सोचने पर ही तो मजबूर करना है आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक मोहम्मद जलील साहब। सो वी वर रीडिंग दिस जो चार्ट एंड हम पहुंचे थे काफ वा पेश कू तक। अफरोज साहब ने आखिरी बार इसको जब पढ़ा तो काफ वा पेश कू तक हम पहुंच चुके थे। हु विल कंटिन्यू दिस चार्ट, जो चार्ट ऑनवर्ड्स, यहाँ से ऑनवर्ड्स कौन कंटिन्यू करेगा? फैजान साहब, कैन यू कनेक्ट? अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इसको कू से, काफ वा पेश कू से आगे कंटिन्यू करें। If you can listen to me, if you can connect, continue it from Kafa Peshku. Faizan Sahab. Maqsood Ali Sahab, are you there? And can you listen to me? And if you can listen to me, can you connect? चाहता हूँ connect कर सकूँ था। फजीला साहब चाहता हूँ connect कर सकूँ था। इन्हन दोस्तन बजा कोई भी जगह connect कर सके, so he can help me or she can help me continuing this chart. Who's there? Who is there? Yes, sir. जी, फजीला साहब। फजीला साहब ता किया आयो? Sir, alhamdulillah. जी फजीला साहब, काफा पेशकू ताईं असां पढ़ियोसीं, उन खां अॻिते तव्हां पढ़ंदा। छा तव्हां मूंखे ॿुधी सघो थियूं? फजीला साहब, छा तव्हां मूंखे ॿुधी सघो थियूं? फजीला साहब, छा तव्हां मूंखे ॿुधी सघो थियूं? Sir, signal issue आहे हिते बि। अच्छा, चलो ठीक है, मां ॿिए कंहिंखे थो चवां पियो। हु विल कम टू रीड दिस टेबल काफा पेशकू से आगे? जिन्होंने मुझे ये टेबल पढ़ने में अभी तक असिस्ट नहीं किया, कोई और? एनीबडी? आसिफ इकबाल साहब, कैन यू हेल्प मी रीडिंग दिस टेबल? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम साहब, कैसे हैं आप? किया है था? अल्लाह का शुक्र जी। प्लीज रीड दिस टेबल फ्रॉम काफा पेशकू ऑनवर्ड्स। का वापिस कू, गाव खो वापिस कू, गाव को वापिस नहीं है, गू, खे वापिस कू, खे वापिस कू, खे वापिस खू, गाव वापिस गू, गाफ वापिस गू, गाफ वापिस गू, गाफ वापिस गू, गे वापिस गू, गे वापिस गू, गे वापिस गू, गे वापिस गू, खो वापिस गू, ने वापिस गू, लाम वापिस लू, थैंक यू वेरी मच आसिफ इकबाल मीम साहब। वापिस मू। थैंक यू वेरी मच आसिफ इकबाल साहब। आइलीन साहब, कैन यू हेल्प मी रीडिंग दिस टेबल फ्रॉम लाम वापिस लू से आगे? Yes, sir. जी जी, फ्रॉम लाम वापिस लू। Lam वाव पेश लू, जी मीम वाव पेश मो, जी नून वाव नो, जी, नून वाव पेश नो, ये नून है, नून नून। रून वाव पेश नो, हम्म, वाव वाव पेश वू, वू, हे वाव पेश हू, गुड। आइन वाव पेश आइन ऊ, नहीं है, हमजा, हमजा, एन नहीं, हमजा। जी। ऊ, अगेन, से इट अगेन, हमजा, से इट अगेन, हमजा। हमजा वाव पेश ऊ, ऊ, ये वाव पेश यू।
Ye वापिश. Thank you very much. Very good. Thank you, Eileen Saiba, for helping me. Thank you, Asif Iqbal Sahab, for helping me, and thank you, Fazila Sahaba, for helping me. I'm reading it. I'm revising it, reviewing it. हिकिड़े लसे नमूने सां, सिधे नमूने सां मां हिनखे लस में पढ़ी थो वञा पियो, हिकिड़ो दफ़ो वरी ॿुधिजो। ये जानना भी जरूरी है कि किस हर्फ को हम क्या कहते हैं, किसको हम धे कहते हैं, किसको धाल कहते हैं, किसको खे कहते हैं, किसको बा कहते हैं, किसको बे कहते हैं। ठीक है, ये जानना भी जरूरी है कि बे को बे कहते हैं, बे को बे कहते हैं, बे को बा नहीं कहते, और गाफ को गा नहीं कहते। ये जानना भी जरूरी है। तो अलिफ वाव पेश ऊ, लिसन टू इट केयरफुली। अलिफ वाव पेश ऊ, बे वाव पेश बू, बे वाव पेश बू, भे वाव पेश भू। दिस इज बे वाव पेश बू, द सेम फैमिली फ्रॉम बू, लेकिन देयर इज अ स्मॉल, देयर इज अ टाइनी डिफरेंस बिटवीन बू एंड बू, ब एंड ब, ब ब। बे वाव पेश बू, बे वाव पेश बू, भे वाव पेश भू, ते वाव पेश तू, थे वाव पेश थू, टे वाव पेश टू, ठे वाव पेश ठू, ठे वाव पेश ठू। ठे उर्दू में भी है, टे और हे के मिलाप के साथ बनती है, उसकी आमेजिश के साथ बनती है। से वाव पेश सू, पे वाव पेश पू, जीम वाव पेश जू, ये वाव पेश जू। ये इज अ फैमिली मेंबर ऑफ जीम फैमिली, but the pronunciation differs, the sound differs. Jim वापस जू, ये वापस जू, यू, ज j, और ये न्य। इन तीनों फर्क समझे, ज ये न्य। ये वापस जू, जे वापस जू, न्ये वापस न्यू, चे वापस चू, छे वापस छू, हे वापस हू, खे वापस खू, दाल वापस दू, धाल वापस धू, डाल वापस डू, डाल ड, not d. There's a difference between d and d. D belongs to the same family of d, उसी खानदान से मुताल्लिक है, लेकिन फर्क है उसकी आवाज में। डाल वापस डू, डेडर, डेडर मेंढक वाला, डड्डू वाला, ड ड। डाल वापस डू, डाल वापस डू, ढाल वापस ढू, जाल वापस जू, रे वापस रू, रे वापस डू, जे वापस जू, सीन वापस सू, शीन वापस शू, स्वाद वापस सू, ज्वाद वापस जू, तोए वापस तू, जोए वापस जू, ऐन वापस ऊ, गैन वापस गू, फे वापस फू, फे वापस फू, फे फे, फे फे, फे फे, फे वापस फू, फे वापस फू, काफ वापस कू, काफ वापस कू हलक से, और ये विदाउट हलक काफ वापस कू। ये है किताब वाली काफ, ये है कलम वाली काफ, ये है किताब वाली काफ, ये है कलम वाली काफ। काफ वापस कू, काफ वापस कू, खे वापस कू, गाफ वापस कू, गे वापस कू। दिस इज गाफ, दिस गे, the same family members, but characteristics are different, the sound is different. Gaf वापस गू या गे वापस गू, गे वापस गू, घे वापस घू, and this is again a different one. Nye from nose, from nasal. Nye वापस नू, गाफ को नेजल करेंगे तो ये निकलेगा ने, nye, nye वापस नू, लाम वापस लू, मीम वापस मू, नून वापस नू, णून वापस नू, णून या णे। The combination of डे and नून, the combination of डे, कहाँ गया डे, ये वाला डे और ये नून, इन दोनों को मिलाएंगे डे और नून को, तो बनेगा ण ण ण। ठीक है, ण, णून वापस णू या णे वापस णू, वाव वापस वू, हे वापस हू, हमजा वापस ऊ, ये वापस यू। So this is the first step of Ujo chart. Tomorrow we will go through in detail to every letter, all the 52 letters, and also will discuss the possible letters, possible words made of these letters, right? तो possible words जो हैं उनको भी हम कल डिस्कस करेंगे। फिल वक्त हम चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ। कल हम ये पढ़ेंगे, यानी इन डिटेल हम इन तमाम हुरूफ को जो है वो डिस्कस करेंगे, और जाहिर है कि उसमें पॉसिबल वर्ड्स जो हैं जो उनसे बनते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कुछ क्लियरिटी के लिए। फिर थर्ड स्टेप इसका होता है जब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं बाय राइटिंग दोज वर्ड्स हु आर मेड ऑफ अलिफ वा पेश ऊ और बे वा पेश बू और पे वा पेश बू और भे वा पेश भू और ते वा पेश तू। सो आते हैं हम
रिश्तन जा नाला, सिंधी में संगन जा नाला, मुख्तलिफ रिश्तों के नाम सिंधी में। उसका 5वां और आखिरी मरहला आज करते हैं। कोशिश करता हूँ कि आज इसको मैं इख्तिताम पजीर करूँ। ये याद रखिएगा, रिश्ते बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे रिश्तों को बहुत सारे रिश्तों के नाम आपको अपनी जुबान में भी नहीं आते होंगे। एडा रिश्तन, एडा संगन, छाकाणि त इंसान, मां पहिरें ॾींहुं तव्हांखे ॿुधायो त द ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, हैवान नातिक है इंसान, और इन रिश्तों के बगैर जो है वो रह नहीं सकता। अब तो गो के अर्बनाइजेशन बढ़ गई है और एक जो सोशल फैब्रिक है वो डिस्कनेक्ट होता जा रहा है, भाई भाई के साथ जो है वो नहीं रह पा रहा। लेकिन उसके बावजूद वो रिश्तों के नाम तो है ना, तो वो रिश्ते बेतहाशा हैं। जो अहम तरीन है उनका हम जिक्र कर रहे हैं, और उसमें अहम तरीन में एक तो आपके बिल्कुल इमीडिएट रिलेशंस हमने डिस्कस किए, फिर उसके बाद ददियाल, फिर उसके बाद ननियाल हमने डिस्कस किया, और हम पढ़ रहे थे लास्ट जो हमने सेगमेंट किया था इसका, तो उसमें जो शादी के बाद बनने वाले आपके रिश्ते हैं, जेके शादी का पोइ विहांव खां पोइ तव्हांजा नवां रिश्ता ठहनि था, ठहियल ठुकियल रिश्ता तव्हांखे मिलनि था, उहे असां डिस्कस पे कयासीं। बिकॉज शादी के बाद आपकी फैमिली डबल हो जाती है, यू बिकम द ब्रिज बिटवीन टू फैमिलीज। तो उसमें जो नए रिश्ते बनते हैं, ज़ाहिर है कि एक ही लम्हे में बहुत सारे रिश्ते आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आपके साले, आपकी सालियाँ, आपके बहनोई, आपके सास, आपके ससुर, हमने कुछ तो डिस्कस किए थे, लेकिन कुछ हम आज के इस सेगमेंट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और फिर इसको इख्तिताम पजीर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे शोबे रहते हैं कि जिसमें हमें सिंधी के अल्फाज सीखने हैं। तो दिस इज वेरियस रिलेशंस इन सिंधी, दिस इज पार्ट 5 एंड होपफुली पार्ट द लास्ट पार्ट। ओके, आते हैं साले पर। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और साला किसको कहते हैं? आप सब जानते हैं कि साला जो बेगम है वो उनके भाई को, भाई साहब को कहा जाता है कि ये आपके साले हैं। तो वही रूल अप्लाई होगा जो बाबा और बाबों पर था, जो चाचा और चाचों पर था, यानी अलिफ पर खत्म होने वाले रिश्ते जो उर्दू में अलिफ पर खत्म होते हैं, सिंधी में उन पर वाव लगता है। तो सीन अलिफ सा, सीन अलिफ जबर सा, लाम वा जबर लो, सालो इज साला, सालो इज वन साल। ठीक है, अगर ज्यादा प्लूरल में हो तो हम कहेंगे साला। ठीक है, तुझा कितना साला है, हाउ मेनी ब्रदर्स इन लॉ डू यू हैव, तो उसमें होगा साला, तुझा कितना साला है, जो कि उर्दू में साले हो जाएगा। उर्दू में साले इज सिंधी में साला, और उर्दू में साला इज सिंधी में सालो। यही रूल चाचों पर भी अप्लाई होता है। चचा इन उर्दू इज चाचो इन उर्दू सिंधी, दादा इन उर्दू इज डाडो इन सिंधी, नाना इन उर्दू इज नानो इन सिंधी। तो इस तरह से साला इन उर्दू इज सालो, सिंगुलर इन सिंधी। अगर प्लूरल करना हो तो वाव की जगह पर अलिफ लग जाएगा, साला। सालो एक साला, साला मीन्स दो या दो से ज्यादा ब्रदर्स इन लॉ। तो सालो जो है, साला जो है ब्रदर इन लॉ इज कॉल्ड सालो इन सिंधी। आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद बहनोई, बहनोई, अच्छा साली अगर हो तो इसमें ये लग जाएगा, और लाम ये जेर ली लग जाएगा, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। साली इज सीन अलिफ सा, लाम ये जेर ली, साली, दैट विल बी सिस्टर इन लॉ। तो एक से ही आपने 3 सीख लिए, सालो, साला एंड साली। ठीक है, फिर साली की जमा साली हो जाएगा, तो वो उसी तरह से ही जैसे दादी की जमा दादियों, नानी की जगह नानियों, तो इसी तरह से ही सालो का जो प्लूरल है वो साला हो जाएगा, और जो उसका फेमिनाइन है वो साली हो जाएगा। राइट, बहनोई, ये थोड़ा सा शायद आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन जाहिर है कि मुश्किल हो या आसान हो, उसको समझना, उसको सीखना, उसका जानना जरूरी है कि इस रिश्ते को क्या कहते हैं। सिंस वी आर discussing about almost all the relations, almost all the important relations, not all the, but all the important relations. Brother in law, बहनोई को भी brother in law ही कहेंगे। आपकी बहन का शौहर, आपकी बहन का शौहर, चाहे आप खातून हो या मर्द हो, आपकी बहन का शौहर जो है वो कहलाता है बहनोई। उसको सिंधी में कहते हैं, आपको याद होगा, बहन को सिंधी में बोलते हैं भेड़। आज भी आपने रिश्तों के नाम लिखे होंगे, पता नहीं कौन कौन से रिश्तों के नाम के, तो भेड़ का मतलब है बहन। ठीक है, उसी भेड़ के साथ ये और डबल वाव ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा भेणी वो, भेणी वो। 1 2 3 4 5 6 हरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज, लेकिन 3 हिस्सों पर। पहला ऐसा है भे, भे ये जबर भे, उसके बाद है णी, णून ये जेर णी, वो वाव वाव जबर वो, भेणी वो, भेणी वो।
अब देखें आवाजों के चार्ट क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं आवाजों के चार्ट? जबर वाला चार्ट आपने पढ़ा था ना, तो जबर वाले चार्ट में उसके बाद में फिर अगर भे ये का चार्ट हम पढ़ते, भे ये जबर का चार्ट अगर हम पढ़ते, मैंने कहा बहुत सारे चार्ट्स हमने ओमिट कर दिए, सिर्फ हमने इसमें इंपॉर्टेंट तरीन चार्ट्स रखे हैं। तो उसमें भे के साथ आता भे ये जबर भे, ऋण और ये का चार्ट अगर हम ई का चार्ट पढ़ते तो उसमें ऋण ये जेर णी, भे णी, वाव वाव जबर वो, भेणी वो। ओ का चार्ट पढ़ा था ना हमने, तो उसमें ओ के चार्ट में वाव वाव जबर था, ये वही है। क्यों पढ़ते हैं आवाजें? इसलिए कि ये आवाजें मिलकर अल्फाज बनाते हैं, और ये आवाजें अगर हमें हिज्जे करने आएंगी और उनकी प्रोनाउंसिएशन और उनकी शक्ल समझ में आएगी तो इस किस्म के मुश्किल अल्फाज हम आसानी से प्रोनाउंस कर सकेंगे, बिकॉज ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स आर मेड ऑफ दीज आसान आवाजें जो हम टेबल्स में पढ़ते हैं। तो भे ये जबर भे, ऋण ये जेरणी, वाव वाव जबर वो, भेणी वो इज बहनोई, ब्रदर इन लॉ, भेणी वो। अगर इसकी जमा की जाए तो आखिरी वाव काटकर अलिफ लगा दें, भेणी वाव मीन्स बहुत सारे बहनोई, दो या दो से ज्यादा बहनोई। ये देखें यहाँ पर मेरे 3 बहनोई बैठे हैं, तो आप कहेंगे हिते मुंहिंजा 3 भेणी वाह वेठा, ठीक है? तो हिते मुंहिंजो हिकिड़ो भेणी वो वेठो मीन्स only one बहनोई is sitting, right? भेणी वो is बहनोई singular, भेणी वा is बहनोई plural, right? भेणी वा, right? तो भेणी वो is बहनोई और ब्रदर इन लॉ। फिर आता है देवर, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, आपके शोहर नामदार के भाई, भाई भी कजन्स भी वो आपके देवर ही होते हैं, कजन देवर होते हैं और ब्रदर देवर्स होते हैं। तो देवर, और हमारे यहाँ हम जैसे माशरों में देवर, अगर आप बड़ी भाभी हैं तो वो आपके बेटे के समान होते हैं, अगर आप छोटी भाभी हैं तो वो आपके बड़े भाई होते हैं। तो ये मशरकी माशरे में बहुत ही काबिल एहतराम रिश्ता है देवर। तो उसको सिंधी में बोलते हैं डेर, ब्रदर इन लॉ। अब वहाँ पर अंग्रेज़ों के पास तो जाहिर है कि डिटेल रिश्ते नहीं हैं, तो वो इस किस्म के तमाम जो ससुराली रिश्ते हैं उसमें ज़्यादातर ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ ही चलता है। इन लॉ मीन्स जो आपके साथ ससुराल की वजह से कनेक्टेड हो, जो शादी के बाद कनेक्टेड हो। तो देवर इज डेर, डाल डाल लेडर वाला, बार बार इससे मुलाकात करवाता हूँ, अच्छा आदमी है बेचारा, लेडर नहीं, ये हर्फ डाल लेडर, इसको मुश्किल समझकर इससे मुंह ना फेरें, इसके साथ आप राव रस्म रखें, इसके साथ चाय शाय पिए, आपको ये आसान लगेगा। अगर दूर भागेंगे तो फिर ये प्रोनाउंस करना नहीं आएगा आपको। डाल ये जबर डे, डाल ये जबर डे या डे ये जबर डे, रे पे शुरू डेर, देवर इज डेर, ये तो छाते ही मुझे दे रहा है, तूने छाते मायने जो दे रहा है। और अगर ज्यादा हो तो इस रे पर पेश की जगह जबर लग जाएगी, डेर डेर, मूसा डेरन वडो डाढ़ कयो। देवर का जिक्र शादी नदी बिटाई के 5 चैप्टर्स में है, ससुई वाले चैप्टर्स में, ससुई को 5 चैप्टर्स में गाया है। और क्यों उसका जिक्र है? क्योंकि अगर आपने ससुई पुन्नू की दास्तान पढ़ी हो तो पुन्नू को उसके भाई उठा के लेके जाते हैं ससुई से दूर, और फिर ससुई इसकी तलाश में निकलती है, तो वो बार बार कहती है मुसा डेरन वरो डाढ़ कयो, यानी मेरे देवरों ने मेरे साथ जुल्म कर दिया कि वो ऊंट पे बिठा के पुन्नू को ले गए। तो वो देवर का, डेर का जिक्र आपको इन 5 चैप्टर्स में, जिसमें ससुई की तलाश का जिक्र किया है, ससुई जो पुन्नू को तलाश करती है उससे जिक्र किया है, कसरत से मिलता है, बस सभी ने जिक्र आपको बता। तो डेर, डेर इज देवर, डाल ये जबर डे, रे पेश रो, डेर इज सिंगुलर देवर, और अगर रे पर जबर लगा देंगे डेर तो 2 या 2 से ज्यादा देवर, ब्रदर इन लॉ, राइट? अब देवरानी यानी उन डेर जी जाल, उस देवर की अहलिया, वो देवरानी है आपकी, सिस्टर इन लॉ। अगेन सिस्टर इन लॉ ज़ाहिर है कि हम सिर्फ समझने के लिए जो है सिस्टर इन लॉ की वजाहत करनी पड़ेगी। अगर आप अंग्रेजी में किसको बताएंगे कि सिस्टर इन लॉ है तो भाई आपकी साली है या आपकी देवरानी है, तो मतलब सिंधी में आपको उर्दू में बताना पड़ेगा। जैसे कजिन, कजिन तो आप कजिन कहते हैं, लेकिन फूफीजाद हैं, खालाजाद हैं, चचाजाद हैं या मामूजाद हैं, ये आपको वजाहत करनी पड़ेगी कि कौन सी कजिन। तो ये है जो डेर आपने पढ़ा, ये डेर आपने पढ़ा, अब उसमें यानी ऐड हो जाएगा, ये अलिफ जबर या, नून ये जेरनी, ये 3rd लास्ट लेटर हमारा अल्फाबेट का, ण जो मैं कहता हूँ हमेशा कि नून और डे के मिलाप से बना है, ण, डेर यानी डेर, डाल ये जबर डे, रे जे रे, डेर, ये अलिफ या, ये अलिफ जबर या, नून ये जेरनी, डेर यानी, डेर यानी देवरानी। देखें शक्ल दोनों की एक ही है, लेकिन दाल की जगह पर डाल आ गया और यहाँ पर नून की जगह पर नून आ गया।
देवरानी डेरियाणी, और यहाँ पर थोड़ा सा वाव की जगह पर रे आ गया, और यहाँ वाव की जगह पर यहाँ पर ये आ गया। देवरानी डेरियाणी यानी डेरजी जाल, देवर की अहलिया, डेरियाणी सिस्टर इन लॉ, डेरियाणी। ठीक है, ये इन लॉस के रिश्तों की हम बात कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि डेरियाणी, डेर यानी, डे पूरी आवाज, र आधी आवाज, या पूरी आवाज, ऋणी पूरी आवाज। इसमें पदों का अरेंजमेंट होगा 1 डे प्लस हाफ र प्लस 1 या प्लस ऋणी 1, तो 1 प्लस हाफ प्लस 1 प्लस 1, 3.5 पदों पर मुश्तमिल ये लफ्ज है, लेकिन अरेंजमेंट उसका 1 प्लस हाफ प्लस 1 प्लस 1। डेरियाणी इस देवरानी सिस्टर इन लॉ। साली मैंने जिक्र किया, ये साली, सीन अलिफ जबर सा, लाम ये जेर ली साली, उर्दू की तरह ही लिखा जाएगा, सिर्फ फर्क है कि सिंधी में नुक्ते आते हैं ये पर। साली, सीन अलिफ जबर सा, लाम ये जेर ली साली इज सिस्टर इन लॉ। अगेन सिस्टर इन लॉ आपकी बेगम की बहन। साली यानी ये सिर्फ मेल की साइड का रिश्ता है, मेल की ही साली हो सकती है, और फीमेल की भी होती है साली, फीमेल की तो बात भी होगी ना। तो साली इज सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मीन्स आपकी बेगम की बहन। सीन अलिफ जबर सा, लाम ये जेर ली साली। फिर होता है भाभी, हमने देवर का जिक्र किया, तो देवर आपके देवर हुए, और आप देवर की क्या हुई, आप हुई उनकी भाभी। सिंधी में वैसे भाभी भी इस्तेमाल होता है, शहरी सिंधी में भाभी भी इस्तेमाल होने लगा है। सिंधी में इस्तेमाल करते हैं, यार भाभी के नोटिया, यार भाभी के काट जाए, भाभी से गड्ढ जाए, लेकिन जो प्योर लफ्ज है सिंधी में वो है भाजाई, जिसका इश्तिकाक होगा भाव लाए जाई। भाव कहते हैं भाई को, जाई मीन्स पैदा हुई, भाई के लिए जो पैदा हुई, इसका इश्तिकाक ये होगा। बहुत सारे ऐसे दोस्तों को नहीं मालूम होगा जिनकी सिंधी फर्स्ट लैंग्वेज है कि ये भाव लाए जाई मीन्स भाई के लिए पैदा हो। ठीक है, तो भा भे अलिफ जबर भा, ये अलिफ जबर जा, ये है, ये याद है, ये जिब ज़बान, ये जिब, ये अलिफ जबर जा, हमजा ये जेर ई, भे अलिफ जबर भा, ये अलिफ जबर जा, हमजा ये जेर ई, भा जा ई। 6 हरूफ और 3 पदों पर मुश्तमिल, 3 आवाजों पर मुश्तमिल लफ्ज। पहली आवाज भा, दूसरी आवाज जा, तीसरी आवाज ई, भा जा ई। भाभी, भा जा ई, भाभी भी ठीक है सिंधी में इस्तेमाल होता है, लेकिन प्योर लफ्ज है भाजाई। बेलिफ जबर भा, जेलिफ जबर जा, हमजा ये जेर ई, भाजा ई इज सिस्टर इन लॉ, भाजाई भाभी। अंडरस्टैंड। फिर आता है नंद, बहुत ही खतरनाक रिश्ता नंद और भाभी का। तो अगर भाभी मर्द की है तो ठीक है, लेकिन वो बड़ी लड़ाई चलती रहती है अक्सर घरों में। नंद, अल्लाह करे कि आप में से किसी के साथ ये केस ना हो। तो नंद इज निणान इन सिंधी, निणान नंद, जिसको बॉर्डर के उस पार खासतौर पर साउथ इंडिया में जो है वो ननंद बोलते हैं, वैसे नंद हमारे यहाँ नंद इसको बोला जाता है। तो सिस्टर इन लॉ, अगेन सिस्टर इन लॉ, जो कि अल्टरनेट लफ्ज है, एक्यूरेट लफ्ज नहीं है। निणान, अगर सेशन डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप चंद मिनट के लिए कनेक्ट करेंगे आखिरी जन स्लाइड से, जो कि आपको देखना जरूरी है। नून पर जेर न, आधी आवाज, आधा पद, नून अलिफ जबर ना, नून जबर न आधी आवाज, ना पूरी आवाज, न आधी आवाज, न, इनमें से कोई नून गुन्ना नहीं है, ये कंप्लीट नॉर्मल नून है। नून जेर ने, नून अलिफ जबर ना, नून जबर न मीन्स नंद, सिस्टर इन लॉ। निनान मीन्स नंद, सिस्टर इन लॉ is called निनान in सिंधी। Now हमजुल्फ का मतलब यह है कि यानी आप जो दो बेगमात हैं उनके 2 शोहर आपस में जो है वो हमजुल्फ होते हैं। तो उस हमजुल्फ को सिंधी में बोला जाता है संधू। वैसे हमजुल्फ भी इस्तेमाल होता है कि ही मुझे हमजुल्फ आए। जी जनाब, होप यू कैन लिसन टू मी। वी वर टॉकिंग अबाउट हमजुल्फ। आखिरी चंद स्लाइड्स रिश्तों के इस हवाले से, रिश्तों के नाम सिंधी में उसका जो पार्ट 5 है उसकी आखिरी चंद स्लाइड्स हैं। तो हमजुल्फ, हम जिक्र कर रहे थे हमजुल्फ का। हमजुल्फ इज ब्रदर इन लॉ ही कहेंगे और क्या कहेंगे, तो दैट्स कॉल्ड संधू इन सिंधी। हमजुल्फ तो आप समझते हैं ना, आई होप यू आर क्लियर, कि अगर 3 बहनें हैं, उन तीनों बहनों के जो शोहर हैं वो आपस में डायरेक्ट रिश्ता तो उनका नहीं है, कोई भी नहीं है। कभी कभार मुख्तलिफ कौमों कबीलों से ताल्लुक है, मुख्तलिफ कुड़मन सानों जो ताल्लुक है,
हिकिड़े जो मगरिबा ॿिए जो मगरिबा, पर हुन में ज़ाहिर आहे पाण में हिकिड़ो किथे कंहिं फैमिली गैदरिंग में मिलनि था तो सॻियुनि भेनरुनि जा जेके मुड़ुस आहिनि, सॻी बहनों के जो शोहर नामदार है वो आपस में हमजुल्फ होते हैं। हमजुल्फ का मतलब ये है कि यानी उनकी बेगमात आपस में बहनें हैं, तो उसको सिंधी में बोलते हैं संडू। वैसे हमजुल्फ भी बोलते हैं, आजकल जो शहरी सिंधी है उसमें हमजुल्फ भी ठीक है, लेकिन जो प्योर लफ्ज है, जो इंडिजीनियस लफ्ज है, वो सीखना जरूरी है। वो है संडू। सीन नून जबर सन, ढे वाव जबर ढू, ढे वा पेश ढू, संडू। 4 हरूफ, 2 आवाजें, 2 पद। पहला पद सन, दूसरा पद ढू। सीन नून जबर सन, ढाल या ढे वाव पेश ढू, संडू। संडू इज हमजुल्फ, ब्रदर इन लॉ। ओके, और आई होप दिस वाज, हाँ एक और लास्ट वन एक रिश्ता नहीं है, निस्बत है। लास्ट वन मैंने ऐड किया अभी, आज ही मैंने ऐड किया। वो रिश्ता नहीं है, एक निस्बत है। कोई मुझे बताएगा कि जब शादी होती है तो शौहर जो दूल्हा है, सॉरी जो दूल्हा है, उसके साथ एक शख्स हर वक्त साथ होता है, और ये हमारी मशरकी शादियों में होता है, खासतौर पर ये साउथ एशियंस जो हैं वो, उसमें एक खास एक शख्स होता है जो कि उमूमी तौर पर बहनों ही होता है। उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले वो बताएं कि जिनकी मदर टंग सिंधी है वो बता सकते हैं उर्दू में उसको क्या बोलते हैं। बहुत कम लोगों को पता होता है ये। जलील साहब आप बताएं, एक सेकंड जलील साहब होल्ड कीजिएगा, आप होल्ड कीजिएगा। पहले मुझे कोई ऐसे दोस्त बताएं जिनकी मदर टंग सिंधी है, वो बताएंगे उर्दू में उसको क्या बोलते हैं। दूल्हे के साथ एक शख्स होता है जो डेप्यूट किया जाता है कि आप उसके साथ रहें, वो उसको असिस्ट करता है, वो उसके हार उठाता है, वो उसके नाज उठाता है, वो उसकी मतलब वो कोई भी चीज होती है, कोई उसको जरूरत होती है, जाहिर है वो तो किसी को नहीं पुकार सकता, तो उसको असिस्ट करता है। अफरोज साहब उर्दू में बताया है, उर्दू में बताया। जी सर, उर्दू चवंदा आहियूं न, सॉरी ॿीहर चओ। जेको गॾु हूंदो आहे उन में तरण तव्हांजो आवाज़ ॾाढो कटिजे थो अफरोज साहब, मां सम्झी नथो सघां। जो घोट सां गॾु हूंदो आहे उन छा चवंदा आहियूं? सर सिंधी में त असां अरण चवंदा आहियूं। ओके ठीक है। मां अरण उर्दू में थो पुछां, उर्दू में थो जी पुछां, उर्दू में छा चइबो आहे हुनखे? एनीबडी? सर उर्दू जी ख़बर न आहे, तव्हां ॿुधायो। चले नो मां उर्दू में नथो ॿुधायां, मूंखे सिंधी में ॿुधाइणो आहे न। मां हूअं मालूमात लाइ थो पुछां, मूंखे सिंधी सेखारणी आहे, मूंखे उर्दू थोरी सेखारणी आहे। मां इहो थो पुछां, मां त जस्ट फॉर मां पुछां थो कंहिं कंहिंखे ख़बर आहे, छाकाणि त ॾुखियो लफ़्ज़ हूंदो आहे ऐं घणनि खे जेकी सिंधी ज़ुबान न आहे उहे जेको आहे सो जंहिंजी उर्दू ज़ुबान न आहे उहे न आहिनि ॿुधाए सघंदा। जलील साहब यू रेज योर हैंड, यू वांट टू शेयर सिंधी उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? अगर मैं पहले तो अर्ज करूंगा कि पिंड में एक लफ्ज यूज समाला। सॉरी पंजाबी में सर एक लफ्ज होता है समाला। समाला। ओके ओके समाला ओके तो वो साथ होता है और उसकी वो रिश्तेदार तो उर्दू में शैबाला होगा शायद मेरा। क्या होगा? सॉरी कट रही है आपकी आवाज। उर्दू में शायद शैबाला होगा, मुझे श्योर नहीं हूँ, उर्दू में मुझे एग्जैक्ट नहीं है, शैबाला शायद है। चलिए आयशा तारिक साहब आप बताएंगे, अगर आप सही बता रहे होंगे तो इंडोर्स करेंगी, अगर नहीं तो वो करेक्ट करेंगी। जी आयशा तारिक साहब। सर साड़ू कहते हैं। साड़ू? जी साड़ू तो हिंदी में कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? हमजुल्फ, हमजुल्फ। सॉरी हमजुल्फ? आई कांट हियर यू। एनीबडी एल्स? कोई और बताएगा कुछ? कोई और बताएगा? करीमुख साहब कहाँ आयो? करीमुख साहब बताओ। जी सर। जी बताओ। शे वाला, शे वाला, शे वाला, शे वारो, जी शे सर। विकिणंदा जेको? जी न न न न शे वारो ना साईं, बाकी शे वाला, शे वाला जो शेव बनाता शे है। शे अच्छा शे वाला, ओके ठीक है। एनीबडी एल्स हाँ। हु विल करेक्ट करीमुख साहब? करीमुख साहब ने थोड़ी सी गलती की, जलील साहब ने सही बताया, कोई बताएगा?
एनीबडी? सजन सर, सजन। सजन यानी वो दोस्त वही होता है, बाकी सारे दुश्मन होते हैं। सजन का मतलब तो दोस्त है, बाकी सारे बारात में दुश्मन तो नहीं होते। चलें, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। शादी सराज साहब आप बताइए। सर मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन शहबाला ही कहते हैं। शहबाला कहते हैं, शाबाश, थैंक यू। थैंक यू जी। उसको उसको बोलते हैं शहबाला, उसका सही नाम है शहबाला। ठीक है, साड़ू जो है वो संडू को कहते हैं। आशिता साहब, जो अभी मैंने बताया आपको, हमजुल्फ, उसको बोलते हैं साड़ू। लेकिन वो जो दूल्हे के साथ होता है, जो उसके खास तौर पर उसको असिस्ट करने के लिए होता है। दूल्हे को प्यास लगी है तो वो थोड़ी उसको, जो सर्व करने वाला है टी बॉय, उसको थोड़ी पुकारेगा, वो कान में उसको बोल देता है कि मुझे प्यास लगी है, तो वो पानी अरेंज करता है। या मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो कोल्ड ड्रिंक अरेंज करता है, या मुझे चाय पीनी है, या मुझे सर में दर्द है वो टेबलेट अरेंज करता है। बहुत सारे हार हो गए, पहना लिए लोगों ने, तो वो उतारता है और फिर कंसर्न बंदे को दे देता है। तो इसलिए जब उसके आसपास रश हो जाता है तो उसके प्रोटोकॉल में होता है, जो उसको बोलते हैं शहबाला। शहबाला। और उसको सिंधी में क्या बोलते हैं? और अफरोज का अरण, वैसे मुख्तलिफ खित्तों में, सिंध के मुख्तलिफ खित्तों में उसको मुख्तलिफ अल्फाज बोले जाते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड सिंधी है, जो स्टैंडर्ड मयारी सिंधी, मैं अगेन कहता हूं कि हम जब लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें जो सिंध का सेंट्रल पोर्शन है, जहां की बोलने और लिखी जाने वाली सिंधी को स्टैंडर्ड करार दिया गया है, जो टेक्स्ट लैंग्वेज है, जो ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज है। यानी ये तो डिसाइडेड है ना कि जब ब्रॉडकास्ट होगी सिंधी, चाहे इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो या सिंगापुर से हो या हांगकांग से हो या दुबई से हो, दुबई से भी सिंधी चैनल्स ऑन एयर होते हैं, बोली वही जाएगी जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जो कि विचोलों की जुबान है, जो कि सेंट्रल सिंध की जुबान है, उसमें इसको बोलते हैं आनर। बिल्कुल वही प्रोनाउंसिएशन है जो ऑनर की है, जो HONOUR की है, लेकिन उसमें हम ऑनर कहते हैं, ओ को प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसमें आप यूं समझें कि ओ की जगह पर अलिफ है, ए है, सॉरी, आनर, इसको बोलते हैं आनर। कुछ जगहों पर इसको अरण भी बोलते हैं, लेकिन वो डायलेक्ट का फर्क है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज मयारी सिंधी में इसको बोलेंगे आनर, मुझे शहबाला। अंग्रेजी में मैंने इसकी मीनिंग तलाश की तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी मिली, और रेख्ता वाले ने बताया कि इसको बेस्ट मैन कह सकते हैं। जाहिर है कि वेस्टर्न वेडिंग्स में तो शहबाला नहीं होता होगा, लेकिन हमारे उस ट्रेंड को देखते हुए उसको बेस्ट मैन कह सकते हैं, कि बेस्ट मैन ऑफ ऑल, सब में से जो बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन इन टर्म्स ऑफ दूल्हे के जो करीब है, दूल्हे उससे उसके दोस्ताना मरासिम होना जरूरी है कि वो माइंड ना करे। और हमारे यहाँ ये होता है कि जो शहबाला होता है उसके साथ फिर फूलिंग भी होती है, उसकी हूटिंग भी होती है, और उसके साथ फिर उसके दोस्त जो हैं, दूल्हे के दोस्त जो हैं, वो उसके साथ उसको फूल करने की कोशिश भी करते हैं और उसको बुली करने की कोशिश भी करते हैं। तो उसमें वो बर्दाश्त भी हुई, सारी चीजें हमारे मद्देनजर रखी जाती हैं। उसको सिंधी में बोला जाता है आनर। कोई भी शादी हो तो कहते हैं भाई आनर कह रहा। आनर कौन है भाई? आनर, अलिफ मद आ, नून जबर न, रे पेश आनर, आनर। दिस साउंड्स लाइक ऑनर, लेकिन ऑनर तो हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसको इंग्लिश को सिंथेसाइज कर दें तो वो बन जाएगा आनर। आनर इज शहबाला, बेस्ट मैन। और अगर आपको नहीं मालूम तो आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछिएगा, आपको जरूर बताएंगे कि अब ये ट्रेंड कम होता जा रहा है, लेकिन पहले ये बहुत ज्यादा था। और अभी जो रिवायती वेडिंग्स हैं उसमें ये होता है कि एक बंदे को चुना जाता है कि आप इसके दूल्हे के साथ हर वक्त रहेंगे, असिस्ट करेंगे आप। जाहिर है कि जब वलीमे में सब खाने लग जाते हैं या शादी में बारात में सब खाने लग जाते हैं, तो कोई देयर शुड बी समबडी टू टेक केयर ऑफ दूल्हा, कि भाई उसको खाना मिला है नहीं मिला, या दूल्हा दुल्हन अगर साथ बैठे हैं तो उनको सर्व करवाना, सर्व करने वालों को मुतवज्जो करना कि भाई यहाँ पर सर्व करो, ये चीज कम है, या कोल्ड ड्रिंक दो या चाय दो, उनको प्रोटोकॉल देना उस बंदे के काम होता है, जो कि अमूमी तौर पर उसके बहनोइयों में से कोई होते हैं। अगर बहनें गैर शादीशुदा हैं तो फिर कजिन्स में कोई हो जाता है, तो कोई भी ऐसा जो उसको असिस्ट कर सके और उसको छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम करने में कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। तो ये रिश्ता नहीं है, एक निस्बत है। याद आ गया तो मैंने कहा मैं इसका भी जिक्र आपके साथ कर चलूं। तो ये है आखिरी स्लाइड हमारे रिश्तों की, रिश्ते में नाला सिंधी में। दिस इज 5वीं इसकी जो फसल है, दिस इज 5th पार्ट। द शहबाला बेस्ट मैन इज कॉल्ड आनर इन सिंधी, अल्फदा नून जबरना रेपेश आनर। तो लेट मी रिवाइज कि हमने आज कौन कौन से रिश्ते किए। आनर यानी शहबाला, संधू यानी हमजुल्फ। बहुत सारे संधू हों तो भी संधू ही होंगे, ठीक है, इसकी जमा भी संधू ही होगी। जैसे शीप की जमा शीप ही होती है, हेयर की जमा हेयर ही होती है। इसी तरह से निड़ान
इज नंद, और निनान की जमा निनानू हो जाएगा, वाव और नून गुना लग जाएगा पेश के साथ, निनानू हो जाएगा उसकी जमा प्लूरल। तो निनान इज नंद, भाजाई इज भाभी, भाजाई की जमा भाजायूं हो जाएगा, वाव और नून गुना पेश के साथ लग जाएगा, भाजायूं। ये वाव नून गुना पेश यूं, भाजायूं यानी भाभी, भाभियां। तो भाजाई इज भाभी, साली इज साली, सालियों इज बहुत सारी सालियां, डेरियाणी इज देवरानी, डेरियाणियों is the plural of देवरानी, डेर is देवर, डेरा is बहुत सारे देवर, भेणी वो is बहनोई, भेणी वा is बहुत सारे बहनोई, सालो is साला, साला is साले, यानी इसका प्लूरल होगा साला, तो सिंगुलर होगा सालो, राइट। तो दिस वाज रिश्तंजन नाला सिंधी में, दिस वाज पार्ट 5 and we will be doing the complete the part 2 of ऊजी पट्टी, यानी कंप्लीट एक एक हर्फ को आप असिस्ट करेंगे कि किस तरह से इज्जे किया जाता है, और मैं आपको बताऊंगा उसके मुमकिन अल्फाज। अगर आप रफली लिख लें कि कौन कौन से अल्फाज बन सकते हैं, ये वापेश यू से, हमजा वापेश ऊ से, ये वापेश हू से, वापेश हू से, तो यू कैन जॉट इट डाउन एंड दैट विल हेल्प अस फॉर टुमारोज एक्सरसाइज। दैट इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज कि जिसमें हम नए अल्फाज, मुमकिन अल्फाज का जिक्र करते हैं, और फिर जो है वो हम इसको सेकंड टाइम उसको रिवाइज करते हैं। तो टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द की ऑफ द टेस्ट, स्कोर्स ऑफ द टेस्ट, एंड उसके बाद हम इसका पार्ट 2 करेंगे ऊ वाली जदवल का। एनी क्वेश्चंस? कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क, अदरवाइज दिस इज द टाइम टू से यू गुड बाय। So I hope that my team has conveyed you that we will be having class tomorrow. Then परसों शब महराज की वजह से हम will be off, क्योंकि उसकी तैयारियों के सिलसिले में जो है वो शाम में मसरूफियत रहती है, और on 8th of February there are general elections. We will meet on Friday then, but we will meet tomorrow then on Friday. Shadi Israt Sahaba has a question. यस सर, ये संडू जो आपने बताया सर, ये मुझे रिश्ता समझ नहीं आया, मतलब किसको हमजुल्फ। कहा जाता है? ये जेंट्स को कहा जाता है या लेडीज, मतलब जो बहनें होती हैं उनको? बहनों के शोहरों को, बहनों के शोहरों को, बहनों के शौहर। बहनों के शोहर आपस में जो होते हैं ना वो हमजुल्फ होते हैं। यानी आपकी अगर 3 बहनें हैं, आपकी अगर 3 बहनें हैं, तो उन तीनों के जो शोहर हैं वो आपस में हमजुल्फ होते हैं। तो वो चाहे सगे भाई हों तो भी हमजुल्फ होंगे। कभी कभी होता है ना, 2 सगी बहनों के 2 सगे भाई शोहर होते हैं, तो वो भी हमजुल्फ हुए आपस में। लेकिन अगर एक का ताल्लुक अफरीब से है, दूसरे का मगरिब से, एक अफ्रीका से है, दूसरे काजकिस्तान से है, तो भी वो हमजुल्फ होंगे, क्योंकि उनकी जो बेगमात हैं वो आपस में सगी बहनें हैं, तो उनको संडू कहा जाता है। तो वो आपस में निस्बती ब्रदर्स जो आपस में हुए, या लाइटर नोट पर इसको कहा जाता है कि वो एक ही कंपनी से ठगे हुए हैं या एक ही कंपनी के फ्रॉड में वो फंसे हुए हैं, तो उनको कहा जाता है कि हमजुल्फ हैं। वो कभी कजिन्स भी हो सकते हैं, वो कभी कजिन मैरिजेस में ऐसा होता है, सगे भाई भी हो सकते हैं, कई केसेस में सगे भाई भी हैं और अब हमजुल्फ भी हैं। तो 2 या 3 बहनों के जो शोहर हैं वो शोहर नामदारान जो है वो आपस में हमजुल्फ होते हैं। अब समझ में आई? जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। तो जनाब, एनी क्वेश्चंस, एनी अदर क्वेश्चंस? So we'll meet tomorrow 5 p.m. inshallah bashar and durstgi ala. Then we will meet on Friday. So this week we are meeting for 3 times, right? तो अपना ख्याल रखिएगा। मौसम बड़ा अप डाउन चल रहा है, और नज़ला जुकाम खांसी का सीज़न चल रहा है अपना, और ख़ासतौर पर आपके घर में जो माइनर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनका ख्याल रखिएगा। बारिश का सीज़न है, कभी पता नहीं चल रहा, ख़ासतौर पर साहिली शहरों में, कराची जैसे शहरों में, कि सुबह को गर्मी है, सुबह को आप पंखा चला रहे हैं और शाम में इस कदर सर्दी है कि आप रज़ाइयों में छुपे हुए हैं, सब दिन में निकल आए हो। सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ है तो सब कुछ है। लोग कहते हैं कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, मैं कहता हूँ तंदुरुस्ती करोड़ हाँ नेमत है, क्योंकि इससे बड़ी अयाशी नहीं है। इफ़ यू आर हेल्दी, इससे बड़ी अयाशी नहीं है कोई। तो ज़िंदगी में जितने भी पल मिले, अल्लाह तबारक तआला आपको सेहत कामिला से नवाजे। अपना ख्याल रखेंगे आप, और अपने आसपास रहने वालों का और ख़ासतौर पर अपने अपनों का भी ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो एट 5 p.m. इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन क्लास नंबर 28। दिलुगत जुदाई का मिला है, सदाएं का जुदा पेट तेरा खैर, अल्लाह ने के बाद।